ठीक. So we will discuss the functions of the respiratory passageway and the pulmonary ventilation. Okay. Regarding the pulmonary ventilation, first of all, you all know that the goal of respiration is to provide oxygen to the tissues and remove carbon dioxide. This goal of respiration is achieved through pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation means that the inflow and outflow of air between the atmosphere and the lung alveoli. Then the diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the blood. Third one is the transport of oxygen and carbon dioxide into the body, into the blood and the body fluids to and from the body tissue. Oxygen जो है ना वो alveoli से blood में जाके tissues को जाएगा और carbon dioxide जो tissues में बनता है वो वहाँ से ब्लड के थ्रू जो है ना वो लंग्स तक आएगा और वहाँ पे ये एक्सचेंज होगा alveolar एयर में और वो फिर बॉडी से बाहर जाएगा. And regulation of ventilation and other aspects of the respiration. Okay. What are the mechanics of pulmonary ventilation? First, you should know that the lungs can be expanded and contracted in two ways. Okay. One is the downward and upward movement of the diaphragm. When the diaphragm gets contracted, it moves downward and lengthen the thoracic cavity. And when it gets relaxed, it moves upward and form its dome shape and shorten the chest cavity. Okay. Secondly, by elevation and depression of the ribs. If there is elevation of the rib, it will increase the anterior posterior diameter, and whenever there is depression of the ribs, it will decrease the anterior posterior diameter of the chest cavity. Okay. During normal quiet breathing, first ये याद रखें, ये बात याद रखें कि हमारे पास दो किस्म की रिस्पायरेशन होती है. एक होती है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जो रिस्पायरेशन होती है. सेकेंडली ड्यूरिंग डिस्ट्रेस और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो फोर्सफुल रिस्पायरेशन होती है. ये दोनों अलग किस्म के हैं. ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग almost all the movement are of the respiration are controlled by the diaphragm. During inspiration क्या होता है? Contraction of the diaphragm pulls the lower surface of the lung to downward. ये क्या होता है? During expiration diaphragm get contracted. वो नीचे चला जाता है तो lungs का जो नीचे वाला surface होता है वो भी downward चला जाता है. तो जो है ना एरिया ज्यादा हो जाती है ताकि बाहर से जो एयर आए वो lungs में समा सके. सही है? During expiration the diaphragm simply relax and the elastic recoil of the lung, chest wall and the abdominal structure compresses the lung and expel the air out. ये during normal quiet breathing है. This is during normal quiet breathing. Okay. During inspiration, simply ये याद रखे, during normal quiet breathing, the muscle of inspiration is diaphragm. Okay. लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रेस हो या एक्सरसाइज, अगर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो और एक्सरसाइज हो तो उसमें फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सेसरी मसल यूज होंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ओके. ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन the muscle which is the primary muscle of inspiration is the diaphragm. ये बात याद रखिए. This is important regarding MCQ's point of view. लेकिन अगर आपके पास during exercise or there is respiratory distress, then the inspiratory muscles are diaphragm plus accessory muscle and external intercostal muscle. Okay. यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा. I am sure about it. Okay. And during expiration, during normal quiet breathing, it simply relax and the elastic recoil of the lung, chest wall and the abdominal structure compresses the lung and expels the air out of the lungs. Okay. Now
during heavy breathing, which occur during exercise or respiratory distress. The elastic, as I have mentioned earlier, that the elastic forces are not powerful enough to cause the necessary rapid expiration. So the extra force is achieved mainly by the contraction of the abdominal muscle. Abdominal muscle क्या करते हैं, वो contract होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो push the abdominal contract और वो फिर intern diaphragm को upward move करता है, तो इसी तरह जो है ना air out of the lung जो है ना चला जाता है. सही है? That is which pushes the abdominal content upward against the bottom of the diaphragm and thereby compressing the lungs. Secondly, the method for expanding the lung is to raise the rib cage. जो डायफ्राम होता है वो मेनली क्या करता है, वो आप लेंथन करता है थोरेसिक कैविटी को, जबकि रिब केज जब आउटवर्ड जाता है तो वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को भी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, तो दिस expands the lung because the natural resting position. During the natural resting position, the ribs slants downward. ये downward होते हैं during natural जो resting state होता है, और इसीलिए जो sternum होता है वो fall backward करता है towards the vertebral column. लेकिन जब आपके पास rib cage elevate हो जाता है, the ribs project almost directly forward, so the sternum also move forward away from the spine. So the anterior posterior thickness of the chest about is get increased by about 20% during maximum inspiration. Okay, पहले हमने कहा डायफ्राम वाला. डायफ्राम क्या करता है, वो लेंथन करता है थोरेसिक कैविटी को. अब रिब केज जब आउटवर्ड आएगा तो वो क्या करेगा, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करेगा. सही है, ये दोनों चीजें जो है ना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होती है. ठीक है, so the muscle that elevate the chest cage are classified as muscle of inspiration, and those muscle that depresses the chest cage are called muscle of expiration. तो muscle of inspiration क्या कौन कौन से है, मैंने कहा external intercostal muscle और accessory muscle. और muscle of inspiration क्या है, वो एक तो इलास्टिक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में तो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होता है, जबकि हेवी ब्रीदिंग में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से होता है. ठीक है, तो मसल ऑफ इंस्पिरेशन कौन कौन से हो गए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड एक्सेसरी मसल प्लस डायफ्राम, और मसल ऑफ एक्सपिरेशन इलास्टिक रिकॉइल, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. ओके, अच्छा, ये स्लाइड थोड़ा हैवी है, मैं सिर्फ इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, वो नोट कर ले, बाकी को छोड़ ले. The most important muscle that raises the rib cage are external intercostal muscle. जैसे मैंने कहा muscle of inspiration. Okay, muscle of inspiration during heavy breathing are the which raise the rib cage are the external intercostal muscle plus accessory muscle. Accessory muscle में pectoralis major, minor, sternocleidomastoid muscle, serratus anterior and scalene muscle. ये जो है ना आपके पास muscle of inspiration है. While those muscles which pull the ribs downward during expiration are the abdominal recti and the internal intercostal muscles. Okay, जबकि abdominal muscles का एक और काम भी है, वो क्या है कि abdominal cavity को push करता है. जब वो एकदम abdominal cavity को पुश करता है तो एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है ना सरफेस है उस वो पुश करता है, और उस पुश करने से वो डायफ्राम जो है ना अपवर्ड चला जाता है. अभी मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन वगैरह है, रिपीट द स्लाइड सर. ओके, मैंने कहा ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग द मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज डायफ्राम. ओके, the primary muscle of inspiration is diaphragm. और during normal quiet breathing expiration जो है ना वो कौन कंट्रोल करता है, वो elastic recoil. It is elastic due to the elastic recoil of the lungs and the chest cage या rib cage. okay, लेकिन अगर heavy breathing हो तो आपके पास कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्पिरेशन में,
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सेसरी मसल। और एक्सेसरी मसल में क्या क्या आते हैं? पेक्टोरलिस मेजर माइनर, sternocleidomastoid muscle, serratus anterior, and scalene muscle. While during heavy breathing expiration, the muscle responsible are the abdominal muscle, specifically the abdominal recti and the internal intercostal muscle. Along with abdominal recti, there are other muscle in the abdominal muscle which get contracted and push the abdominal contents upward so that the lower surface of the diaphragm is pushed upward. Okay, अभी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? कोई मसला अभी भी है? Okay, good. Okay. Today's lecture is very much lengthy, okay? इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह I will hope कि आपको जो है ना समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, now the movement of air. How does the movement of air occur? आपने अभी तक breathing cycle पढ़ा है? आपने ब्रीदिंग साइकिल पढ़ा है? कोई आंसर करे। ब्रीदिंग साइकिल, ओके। जब आप ब्रीदिंग साइकिल करेंगे ना, ओके ओके ओके, आप इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ही ना ब्रीदिंग साइकिल करेंगे। तो जब आप ब्रीदिंग साइकिल करेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि अल्वियोलर प्रेशर पे क्या क्या असर होता है, ये इंट्राप्लूरल प्रेशर पे क्या क्या असर होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सही है, तो वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। सही है, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। How does the movement of air occur? The lung floats in the thoracic cavity. सही है, and the thoracic cavity is surrounded by a thin layer of the pleural fluid, which is present in the pleural cavity that lubricates the movement of the lung within the cavity. सही है। जो ये प्लूरा होता है उसके दो सरफेसेस होते हैं, दो लेयर्स होते हैं। एक होता है विसरल प्लूरा और एक होता है पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो लंग्स की तरफ होता है और पेराइटल प्लूरा जो चेस्ट वॉल की तरफ होता है वो होता है। सही है, तो देयर इज अ कंटिन्यूअल सक्शन। आप ये याद रखें कि इस प्लूरल कैविटी में आपके पास क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। सही है, और उस प्लूरल फ्लूइड की वजह से एक सेक्शन बन जाता है बिटवीन द वेस्ट्रल सरफेस ऑफ द लंग प्लूरा एंड द पेराइटल सरफेस ऑफ द थोरेसिक प्लूरा। सही है, ये बात तो इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो एक प्लूरल प्रेशर बन जाता है, उसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। बिकॉज ये बात याद रहे कि इस लास्ट लाइन को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा आपको एक चीज बता देता हूं। वो आप जब मैं बता दूं ना तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर? ये याद रखे कि अकेले लंग जो होता है उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? the natural tendency of the isolated lung is to collapse, while the natural tendency of the isolated chest wall is to expand. ये बात याद रखे, ठीक है। The natural tendency of the isolated lung is to collapse and the natural tendency of the isolated chest wall is to expand. ठीक है, so both these forces being equal and opposite, therefore the combined lung chest wall system neither collapse nor expand. सही है, so because of these two opposing forces a negative pressure is created and that negative pressure is called intrapleural pressure and it is about -5 centimeter of water. okay, समझ आ गई? अगर समझ ना आई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस स्लाइड को। आप ये याद रखें कि
जो प्लूरा होता है, रिपीट, ओके, जो प्लूरा होता है उसकी दो लेयर्स होते हैं। ये तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना, ये तो याद है ना, रिपीट कर देता हूं, लेकिन पहले ये बता दे कि प्लूरा तो आप जानते हो ना। यस, गुड। प्लूरा के दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जो लंग की तरफ होता है, उसे कहते हैं वेस्ट्रल प्लूरा, वेस्ट्रल सरफेस ऑफ द प्लूरा, लंग प्लूरा। और जो चेस्ट केविटी की तरफ होता है उसे कहते हैं पेराइटल प्लूरा। इन दोनों के दरमियान क्या होता है? प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। सही है। तो इस फ्लूइड की वजह से एक सक्शन, इस दोनों सरफेसेस के दरमियान एक सक्शन फोर्स बन जाता है, ठीक है, एक सक्शन फोर्स बन जाता है। अब प्लूरल प्रेशर या इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या है? It is the pressure of the fluid in thin space between the lung pleura and the chest wall pleura, और वो नेगेटिव होता है ड्यू टू दैट सक्शन फोर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब ये इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड लंग्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू कोलैप्स, और आइसोलेटेड चेस्ट वॉल क्या करता है, दे ट्राई टू एक्सपेंड। सो एज these two forces are equal and opposite, so they neither collapse nor expand. Okay, and a negative pressure is created between these two due to these two opposing forces, and that negative pressure is called intrapleural pressure, and it is about -5 centimeter of water. Okay, अगर स्लाइड में कोई चीज मुश्किल होना तो उस पर ध्यान मत दे, क्योंकि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। इस स्लाइड में जो है ना, वो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। सही है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, अगर अभी भी क्लियर ना हो तो गुड। अच्छा, as I have said earlier that the normal intrapleural pressure at the beginning of inspiration is about -5 centimeter of water. मैंने जो आपसे पहले पूछा ना कि आपने ब्रीदिंग साइकिल पढ़ी है या कि नहीं पढ़ी, अगर आपने ब्रीदिंग साइकिल पढ़ी होती अभी तक ना, तो ये स्लाइड आपको बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो चुका होता। लेकिन अगर अभी ये आपको क्लियर ना हुआ ना, तो जब आप ब्रीदिंग साइकिल करेंगे ना, तो ये स्लाइड वहां पे क्लियर हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर फॉर यू। सही है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन the expansion of the chest cage pulls outward, okay, on the lungs, and the greater force create more negative pressure. ये बात याद रखिए, जब इंस्पायरेशन होती है ना, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर -5 से मोर नेगेटिव की तरफ जाता है। सिंपली वर्ड्स में ये बता दूं, ठीक है। जो मैंने कहा नॉर्मल इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो क्या है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये और नेगेटिव की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपके पास जो लंग्स होती है वो बाहर चले जाती है, तो ये प्रेशर जो है ना और ज्यादा हो जाता है और नेगेटिव की तरफ चला जाता है। सिर्फ सिंपली ये याद रखें, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव, बस ये बात याद रखें। सही है। और alveolar pressure is the pressure inside the lung alveoli, ठीक है। When the glottis is open and no air is flowing in or out of the lung, the pressure in all parts of the respiratory tree all the way to the alveoli are equal to the atmospheric pressure. तो चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है, तो ना तो एयर बाहर जाएगी और ना एयर अंदर आएगी। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा वो 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। सही है। अगर क्लियर ना होना तो पूछ लिया करे, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे भी वो थोड़ा सा वो मसला होता है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू। ओके। अच्छा, जो नॉर्मल प्लूरल प्रेशर
एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन है वो -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये जो प्रेशर हो, ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ये मोर नेगेटिव हो जाता है, तकरीबन 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 -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक चला जाता है। ये वेट अ मिनट, ओके। वाई सेंटीमीटर का ये यूनिट ऑफ वाटर है, ओके। जैसे mm ऑफ Hg होता है ना, इस तरह सेंटीमीटर ऑफ वाटर भी यूनिट फॉर यूज्ड फॉर प्रेशर है, ठीक है। और वाई इट बिकम मोर नेगेटिव, तो ये मैं इसलिए बता दूं, ये आप ये याद रखें। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाई इट बिकम मोर नेगेटिव जो है ना, इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आप ये याद रखिए कि लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अल्वियोलर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम 0 टू नेगेटिव, एंड द प्रेशर इनसाइड इज लेस देन द आउटसाइड, सो फर्स्टली एयर मूव इनटू द लंग्स, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। लेकिन चूंकि लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है ना, लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो इलास्टिक रिकॉइल भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितना वो एक्सपेंड होता है वो इतना ज्यादा वापस आने की कोशिश करता है। आप अगर रबर का एग्जांपल ले लेना, अगर आप एक रबर को खींचते हैं, आप उसको जितना ज्यादा खींचते हैं ना, उतना ज्यादा वो वापस आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए ये इलास्टिक रिकॉइल भी ज्यादा हो जाता है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है ना वो और नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव साइन दाशो कई के ना, if the negative pressure neve kana waqar stada question zata answer welcome. If there were no negative pressure inside this if there were no negative pressure, यार सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है ना वो अलग यूनिट है, और एमएम ऑफ Hg जो है ना वो अलग यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट में यूज कर रहा हूँ उसी को याद रखे कि ये मैं सेंटीमीटर ऑफ वाटर में जो है ना वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सही है। फर्स्टली अगर नेगेटिविटी, ओके गुड, oh good, opposite direction, that's why it's negative. And during inspiration the lungs volume get increase, so जब लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो इलास्टिक रिकॉइल भी इंक्रीज कर जाता है, और जब इलास्टिक रिकॉइल इंक्रीज कर जाता है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। गुड। और जैसे मैंने कहा अगर अल्वियोलर प्रेशर वो नेगेटिव तक ना चला जाए तो क्या होगा, फिर तो एयर अंदर नहीं आएगा ना, सही है। तो इसलिए alveolar pressure जब air if there is no inflow or outflow of the air from the lungs, whenever there is no air inflow or outflow of air from the lungs, the the pressure inside the respiratory tree is equal to the atmospheric pressure, and that is 0 centimeter of water, and there is no inflow or outflow of the air from the lungs. सही है। अच्छा, what does happen during inspiration? The alveolar pressure decreases to about -1 centimeter of water. वो मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो प्रेशर इन alveoli डिक्रीज कर जाता है from 0 to negative, and that's why
decreases from 0 to negative, that is -1 centimeter of water, and due to this negativity, slight negative pressure, this is enough to pull 0.5 liter of air into the lung within 2 seconds required for the normal quiet breathing. ओके पहले हमने कहा कि जब ना तो एयर आउटवर्ड जा रही हो ना इनवर्ड जा रही हो तो प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है. But during normal inspiration, what happens that the lung volume get increases, as a result of which pressure inside the alveoli decreases from 0 to negative, and due to this pressure, because this pressure is less than the outside atmospheric pressure, that's why air move into the lung. About 0.5 liter of air into the lung, inflow of air occur into the lung within 2 seconds, which is required for normal quiet breathing. नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जो है ना आपके पास टाइडल वॉल्यूम वो ना इंस्पायरेट होता है, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो 500 मिलीलीटर है या 0.5 लीटर है, ठीक है. जबकि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन अपोजिट प्रेशर अकर, द एल्वियोलर प्रेशर राइजेस बिकॉज एयर कम्स टू द एल्वियोलाई. जब एयर एल्वियोलाई में आ जाए तो वहां पे प्रेशर जो है ना वो रेस कर जाता है टू अबाउट +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. तो अब प्रेशर इनसाइड ऑफ द एल्वियोलाई ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो दैट्स व्हाई 0.5 लीटर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर आउट ऑफ द लंग इज गेट एक्सपायर्ड इन 2 to 3 सेकंड. सही है, ये स्लाइड समझ आ गई. गुड गुड, सही है. अच्छा, समझ नहीं आई? ओके, एक दफा से फिर बता देता हूं, ठीक है. पहले हमने कहा कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है ना, पहले शुरू से बता देता हूं एक दफा, ठीक है. जो आपके पास आइसोलेटेड लंग्स जो है ना उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो कोलैप्स कर जाए, और आइसोलेटेड चेस्ट वॉल की जो टेंडेंसी है कि वो आउटवर्ड चला जाए, ठीक है. लेकिन चूंकि ये दोनों प्रेशर इक्वल है और अपोजिट है, तो नेचुरली ये क्या होता है कि ये दे नाइदर कोलैप्स नॉर एक्सपेंड, एंड ड्यू टू दीज इक्वल एंड opposite forces a negative pressure is created called the intrapleural pressure. Its value is about -5 centimeter of water. During inspiration, चूंकि लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और इलास्टिक रिकॉइल जो है ना वो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में ये बात याद रखे, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो दोनों बराबर होते हैं टाइडल वॉल्यूम के, और टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो 500 मिलीलीटर है, ठीक है. ये बात याद रखिए, ठीक है. अगर जब एक्सरसाइज हो, जब मैं आपको कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स का बता दूं ना तो आपको फिर ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है. लेकिन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जो है ना आप ये याद रखें, इन ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है, द वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर. ओके, अच्छा, तो मैं क्या बता, यहाँ तक आ गए कि इंट्राप्लूरल प्रेशर क्रिएट, नेगेटिव प्रेशर होता है -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और उसे कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर. अब जब इंस्पिरेशन होती है ना तो लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. जब लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो इलास्टिक रिकॉइल भी इंक्रीज कर जाता है. तो उस इलास्टिक रिकॉइल की इंक्रीज होने से ये इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. जैसा हमने कहा कि -7.5 सेंटीमीटर तक चला जाता है, ठीक है. जबकि
अल्यूलर प्रेशर पे क्या असर होता है? तो अल्यूलर प्रेशर जो है ना, नॉर्मली वो जब ना तो बाहर हवा जाती है, एयर जाती है, और ना अंदर आती है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम alveolar pressure is get equal to the atmospheric pressure, and that's why no air comes into the lung or gets out of the lung. What occurs during inspiration? The lung volume gets increases, as a result of which the pressure in the alveoli get decreases from 0 to negative. And when does this occur? The pressure inside is less than the atmospheric pressure, so the air move from the atmosphere to the lungs. बिल्कुल, रेजिडुअल एयर इज इनसाइड ऑफ द लंग। जब मैं आपको ये अभी स्लाइड्स में आगे आएगा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम्स है और कैपेसिटीज है, वो बाद में आएंगे, लेकिन हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको कवर कर दूँ। ऐसा ना हो कि आखिर में क्लास रह जाए, क्योंकि अभी तकरीबन 20 मिनट रहते हैं क्लास के ख़त्म होने में, और लेक्चर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अच्छा, अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर ना होता ना, तो ये जो है ना लंग्स कोलैप्स हो जाती, और जो चेस्ट वॉल है वो आउटवर्ड एक्सपेंड हो जाता। ये तब होता है जब आप पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाए ना चेस्ट में, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और तब क्या होता है? चेस्ट वॉल बाहर आ जाता है, और जो लंग जो है ना वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर ना होता तो ये होता। ठीक है, अच्छा, the difference between the alveolar pressure and the pleural pressure is called transpulmonary pressure, and it is the pressure that it is the pressure difference between the alveoli and that on the outer surface of the lung. Okay, it is the that's why it is called transpulmonary pressure. And transpulmonary pressure is the measure of the elastic forces in the lung that tend to collapse the lungs at each instant of inspiration. And this transpulmonary pressure is called, collapsing pressure is called the recoil pressure. Okay. What is the compliance of the lung? जैसे मैंने पहले कहा, इस स्लाइड्स में जो है ना आपको जल्दी से बता दूं, that the natural tendency, the compliance of the lung, the extent to which the lung will expand for each unit increase in transpulmonary pressure is called lung compliance, or in simple word, it is defined as change in volume per unit change in pressure. Okay, the compliance of the lung is defined as the change in volume per unit change in pressure. The total lung compliance of both the lungs together in the adult human being average is about 200 milliliter of air per centimeter of water transpulmonary pressure. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज आएगा तो लंग वॉल्यूम 200 ml जो है ना से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये छोड़ दे, ये जो है ना, इस डायग्राम को देखे इसमें लंग कंप्लायंस जो है ना उसको हम देखें। लंग कंप्लायंस क्या है? चेंज इन वॉल्यूम फॉर अ गिवन चेंज इन प्रेशर। ठीक है, कंप्लायंस के बारे में ये याद रखें, कंप्लायंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल स्टिफनेस। ठीक है, अगर लंग इजियर टू फिल होगा तो उसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी, अगर वो हार्डर टू फिल होगा तो उसकी कंप्लायंस कम होगी। सही है। अभी ये इंस्पिरेशन के लिए अलग कर्व है और एक्सपिरेशन के लिए अलग कर्व है। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए और इन्फ्लेशन के लिए अलग कर्व है,
और एक्सपिरेशन और डिफ्लेशन के लिए अलग कर्व है। इस फिनोमिनन को हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये क्यों अलग है? बिकॉज lung inflation the lung inflation curve follows a different curve than the lung deflation curve due to need to overcome the surface tension forces during inflation. आप ये याद रखिए कि ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इंस्पिरेशन को जो सरफेस टेंशन फोर्सेस होती है ना, उसको भी ओवरकम करना पड़ता है, जबकि एक्सपिरेशन को तो उसको ओवरकम नहीं करना पड़ता, वो तो सिंपली एक्सपिरेट होता है, जो पैसिव फिनोमिनन है। ठीक है, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। सही है, दोबारा से एक दफा फिर बता देता हूं कि जो आपके पास लंग इन्फ्लेशन कर्व होता है और लंग डिफ्लेशन कर्व होता है, वो दो अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग इसलिए है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन there is a need to overcome the surface tension forces, while during expiration we don't have to need to overcome the surface tension forces. It is a passive phenomenon. Okay. Now we will come to the surface tension. As you know, जब आप ये याद रखें ना, जब एक रेन ड्रॉप आता है ना, या पानी का एक कतरा आता है, वो एक ड्रॉप की शक्ल में आता है ना, ये इसलिए होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो है ना, वो एक सरफेस टेंशन बना देती है, और फिर वो सरफेस टेंशन क्या करती है, ये उस ड्रॉप को होल्ड करती है। सही है। अब अल्वेओलाई में क्या होता है, the water surface is also attempting to contract and force the air out of the alveoli through the bronchi, which causes the alveoli to try to collapse. सही है। जैसे पानी के सरफेस पे वो सरफेस मॉलिक्यूल में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इस तरह अल्वेओलर सरफेस पे जो वाटर होती है, उसमें भी वो अट्रैक्टिव सरफेस होती हैं, और वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस अल्वेओलाई को जो है ना, वो कोलैप्स करें। सही है। तो क्या होता है, फिर एक सर्फेक्टेंट जो है ना, वो एक्सेस एक्टिव एजेंट इन वाटर that greatly reduce the surface tension. सही है। सर्फेक्टेंट क्या करता है, उस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर जो है ना, वो ग्रेटली रिड्यूस करता है, और उसे कौन बनाते हैं, टाइप 2 अल्वेओलर सेल्स। और टाइप 2 अल्वेओलर सेल्स जो है ना, ये विच कंस्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अल्वेओलाई, ये अल्वेओलाई में पाए जाते हैं, और उसे कहते हैं टाइप 2 अल्वेओलर सेल, और वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। सही है। और अभी ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, ये सर्फेक्टेंट जो है ना, ये मिक्सचर ऑफ फास्फोलिपिड प्रोटीन्स एंड आयन होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड जो होता है वो क्या है, डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन होता है, जबकि सर्फेक्टेंट एपोप्रोटीन्स होती है और कैल्शियम आयंस होती हैं। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन क्या है। तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और आयन से बना हुआ होता है। सही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जो फास्फोलिपिड का होता है वो क्या है, डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज याद रखें कि सर्फेक्टेंट का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या है, डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन है। सही, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर्फेक्टेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट अभी तक आ गई, एक ये कि इसे कौन प्रोड्यूस करता है, तो टाइप 2 अल्वेओलर सेल्स। ठीक है। और इसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसमें कंपोजिशन में जो प्राइमरीली ये इसकी कंपोजिशन है वो किस चीज से है, वो है डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन। सही है। अच्छा, दी डाई पाल्मेटाइल phosphatidylcholine along with several less important phospholipid is responsible for reducing the surface tension. जैसे मैंने कहा, सर्फेक्टेंट क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और उसका मेन कंपोनेंट क्या है, वो है डाईपाल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन। ये कैसे करता है, इट डज नॉट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व
in the fluid lining the alveolar surface. इसका पार्टली ये डिजॉल्व होता है, जबकि रिमाइंडर जो है ना वो सरफेस ऑफ द वाटर पे जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है, और उसी वजह से जो सर्फेक्टेंट की जो अच्छा, अभी मैंने कहा कि सर्फेक्टेंट क्या करता है, वो कोलैप्सिंग प्रेशर को कम करता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को जो है ना वो कम करता है। सो द सरफेस टेंशन ऑफ डिफरेंट वाटर फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्योर वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, वो है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, जबकि नॉर्मल फ्लूइड लाइनिंग द एल्वेओलाई विदाउट द सर्फेक्टेंट उसका सरफेस टेंशन कितना है, 59 पर सेंटीमीटर। लेकिन अगर उसमें सर्फेक्टेंट आ जाए तो वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम 5 एंड 39 पर सेंटीमीटर। ये देखें कि जो सर्फेक्टेंट ने सरफेस टेंशन कितना रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो जब अब ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो ये कोलैप्स होने को मना करता है। ठीक है, ताकि जो एल्वेओलाई है वो कोलैप्स ना हो। ये बात याद रखें कि अगर सर्फेक्टेंट ना होता ना तो एल्वेओलाई विल गेट कोलैप्स, लेकिन अगर सर्फेक्टेंट हो तो it will decrease the surface tension and the alveoli will not get collapse. Okay, there is a law known as the Laplace law, and Laplace law states that the collapsing pressure is equal to 2 into surface tension divided by radius of the alveoli. ठीक है, 2 into surface tension divided by radius of the alveoli. अभी ये देखें, इस रिलेशन को देखें, कोलैप्सिंग प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 into सरफेस टेंशन। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा कोलैप्सिंग प्रेशर होगा। ठीक है, और सरफेस टेंशन को कौन रिड्यूस करता है, सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है, और इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन है रेडियस ऑफ द एल्वेओलाई। इसका मतलब ये है अगर एल्वेओलाई का रेडियस कम हो तो कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि एल्वेओलाई का रेडियस ज्यादा हो तो कोलैप्सिंग प्रेशर जो है ना वो कम होगा। सही है, आवाज चिचाता नहीं जी कना इट दा प्रॉब्लम बदागुई पर नेट की खा। अच्छा, ये पिछली वाली स्लाइड में जो मैंने कहा कि अगर एक एवरेज साइज एल्वेओलाई जो है ना विद रेडियस ऑफ अबाउट 100 माइक्रोमीटर, एक एवरेज साइज एल्वेओलाई का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 100 माइक्रोमीटर विद नॉर्मल सर्फेक्टेंट हो, तो उसमें कितना प्रेशर होता है, कोलैप्सिंग प्रेशर, वो 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, और वो कितने का बराबर है, 3 mm ऑफ Hg के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो फिर कितना है, 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तकरीबन 4.5 टाइम ग्रेटर देन व्हेन द सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट। ओके, अगर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट हो तो ये देखें कि जो प्रेशर है वो कितना रिड्यूस है, और जब सर्फेक्टेंट ना हो तो वो कितना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कोलैप्सिंग प्रेशर। सही है, ओके। Surfactant, so thus the surfactant is important in reducing alveolar surface tension and also reducing the effort required by the respiratory muscle to expand the lungs. अच्छा, the pressure generated is, जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में कहा कि it is inversely proportional to radius। ठीक है, अगर रेडियस ज्यादा हो तो सरफेस टेंशन जो है कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा, अगर रेडियस कम हो तो कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम अब यहाँ कहें कि when the alveoli have half the normal radius 50 instead of 100 micrometer, तो pressure noted is earlier are doubled। जैसे मैंने कहा कि अगर रेडियस हाफ हो जाए तो कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होगा, वो डबल होगा। This is especially significant in small premature babies because many of whom alveoli have radii less than 1/4 of the average person। ये important चीज है। ठीक है,
क्योंकि इस वजह से एक कंडीशन होती है, उसे कहते हैं न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, सर्फेक्टेंट डिक्रीज होता है। तो जब सर्फेक्टेंट डिक्रीज होगा तो कंप्लायंस कम होगा, क्योंकि हमने कहा कि जितना ज्यादा सर्फेक्टेंट होगा वो इजी टू इन्फ्लेट होगा ना, ठीक है। तो जब सर्फेक्टेंट कम होगा तो कंप्लायंस कम होगी, जब कंप्लायंस कम होती है तो it will be difficult to inflate the lungs, or that will result in the ventilation to perfusion defect, and that is the pathophysiology of the neonatal respiratory distress syndrome. अगर समझ ना आई हो न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी तो एक दफा से मैं फिर बता देता हूँ, ठीक। ये मोस्टली किन में होता है, प्रीमेच्योर बेबी में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट एब्सेंट होता है। जब सर्फेक्टेंट एब्सेंट होता है तो क्या होता है, डिक्रीज लंग कंप्लायंस होती है। ओके गुड, डिक्रीज लंग कंप्लायंस होगी तो क्या होगा, डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग्स, और जब डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग्स देयर विल बी वेंटिलेशन टू परफ्यूजन डिफेक्ट। और एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता दूं कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग फील्ड्स होती हैं। क्या होती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग फील्ड्स, ओके। और इसको देखने के लिए मैं आपको ये एक टास्क देता हूं कि आपने जो है ना गूगल पे जाके ये सर्च करना है और आपने वो इमेज देखनी है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग फील्ड्स क्या है, वो आप इमेज में देख लेंगे, ठीक है। ये न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है, ठीक है। अच्छा, the thoracic cage has its own elastic and अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, these babies are very जब न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जब अकर हो जाए ना, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो बेबी जो है ना वो तकरीबन इट इज वेरी फेटल, ओके। लेकिन अगर हम प्रॉपरली कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग दे देना तो बार दफा जो है ना वो फिर हेल्पफुल होता है। लेकिन ये बात याद रखिए क्योंकि इनमें सर्फेक्टेंट नहीं होता ना, तो आप कब तक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग देंगे, सही है। जब भी आप पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग उन पे बंद करेंगे ना तो फिर जो है ना उसके लंग्स जो है ना वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट फेटल क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं होता, सही है। ये छोड़ देते हैं, वर्क ऑफ ब्रीदिंग पे आते हैं। The work of breathing, the work of inspiration can be divided into three fractions, ठीक है। एक वो that is required to expand the lung against the lung and chest elastic forces called the compliance work or elastic work, सही है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग तीन किस्म के हैं, ठीक है। एक वो that is required to expand the lung against the lung and chest wall elastic forces, और उसको क्या कहते हैं, compliance work or elastic work. Secondly, that is required to overcome the viscosity of the lung and chest wall structure, और उसको क्या कहते हैं, tissue resistance work, ठीक है। और the third one is the that is required to overcome the airway resistance to the movement of air into the lung, और उसको क्या कहते हैं, airway resistance work, ठीक है। जो compliance work होता है वो तकरीबन 65%, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो 65% वर्क इस पे होता है। 28% जो है ना वो एयर वे रेजिस्टेंस पे होता है, और टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क जो है ना वो तकरीबन 7% होता है। गुड। तो कंप्लायंस वर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्लायंस वर्क जो है ना वो इंक्रीज होता है किन कंडीशंस में, फाइब्रोसिस में, न्यूमोथोरेक्स में और रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस में। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि इट इज डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग्स, वहां पे कंप्लायंस वर्क इंक्रीज होगा।
और जब एयरवे रेजिस्टेंस आपने देखा होगा कि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो इस वजह से एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इस वजह से एयरवे रेजिस्टेंस वर्क ब्रोंकियल अस्थमा में इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, कंप्लायंस वर्क जो होता है, जितने भी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन ऑफ द लंग डिफिकल्ट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस में इट इज डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग, न्यूमोथोरेक्स में इट इज डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाए तो इट इज डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट द लंग। इन सब कंडीशंस में कंप्लायंस वर्क इंक्रीज कर जाता है। जबकि जहाँ जितनी भी कंडीशंस होती हैं जहाँ एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, वहाँ पे एयरवे रेजिस्टेंस वर्क जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, जो कि तकरीबन 28% है नॉर्मली। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है तो एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, और एयरवे रेजिस्टेंस जब इंक्रीज कर जाती है तो एयरवे रेजिस्टेंस वर्क जो है ना वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। और थर्ड वन इडी टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, जो तकरीबन 7% है, और इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें वो इंक्रीज हो। सही है। तो अभी मैं आपको ये एक बात बता दूं कि चूंकि अभी क्लास ख़त्म होने वाली है, 1 मिनट रहता है, और तकरीबन हमारे पास बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अभी तक हमने हाफ जो हमारा टॉपिक है वो भी कवर नहीं हुआ, क्योंकि इट वाज टू लेंथी। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह Hello. Hello, sir. Hello. السلام علیکم حنیفه ذکر دې کنه پرنسپل سره ته موږ دا خبره کړې وو خو ته بیا مو کا ته وای دا کوم کلاسز چې موږ نیم پاتې شول کنه لکه د رشید سر کلاس نن نیم پاتې شو دا کلاس هم نن نیم پاتې شو نو پرنسپل سره ته وای چې موږ چې کوم ورځ غوښته موږ لري روان منډه هغه ورځ راکړي هغه منډه باندې موږ دا ټول کلاسز واخلو خبره به ختم شي ټیک شو سید دا ورته سره میسج ورته سید دا څنګه دا ورته سره دا په میسج کوم کلاسز بار رینج کی نن شو کلاسز بارنج کې خو ګرځو اکثر بیا چې کې ایکسترا کلاسز کنه نو 5 ته پاسه ګورې نور کلاسز نه رینج کی دا سینه جایز وره ایکسترا بکای یار نو ځکه دا شته شیډول کې هوټل نشته کولای ته خو دشته کې باندې کې خو زما صحبت انځم چې سه ایکسترا کلاسو به سره رینج کړي نه نو چې ایکسترا کلاس رینج کې دغه څه مطلب نه جوړیږي حنیفه بس ته سوچو کو ولې دومره ډېر پلی کورس دغه کوي په یو غنټه کې یو چپټر کور کیږي لکه دا دو ذهن دی کوم ته ټوټل ډاکټران ښکار